If you are struggling to know the name of the patient during role play, this video is for you. So this is the format of OET speaking subtest which I have displayed on your computer screen. It has basically three sections. The first one called the warm-up section, which is not assessed, and the remaining two sections, which is role play number 1 and role play number 2, are assessed. So why we need to know the name of the patient? Because this is very mandatory. If you're speaking with a person you already know and you missed that information during your preparation time and you ask the name again of the patient, then there are chances that you will not get the desired score. So prepare well before you initiate your role play. In this video we'll try to find out the ways how we can know the name of the patient, how we can identify either we know the patient or not. So warm-up section and your planning play a key role in introduction. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो वार्म अप सेक्शन है, जो वार्म अप कन्वर्सेशन है, वो असेस नहीं होती, इसलिए आपका ज़्यादा फोकस रोल पे नंबर 1 एंड रोल पे नंबर 2 पे होना चाहिए. So during your preparation time, if you are not that much confident, write the opening statement or the introduction on the role play cue card. आप वहाँ पे लिख सकते हैं, then you can read and you can initiate the role play. Okay, we'll start with the introduction. So the opening statement from the healthcare professional, it could be nurse, doctor or pharmacist, to introduce a patient or a relative, in which he or she means the healthcare professionals tell his or her name, a job title and role, including the greeting, is called the introduction of role play. And why it is important to introduce yourself? Because the rationale is that, is healthcare professional able to initiate the conversation appropriately or effectively, or he is able to establish a rapport with the patient. This is the part of OET speaking assessment criteria. So during your preparation time, it is very important to pay attention on background information and setting, because sometimes setting will indicate that you know the patient. If this is the scenario, just made a name, because the name will be not given in on a cue card. So you can make a name. If for example he is male, you can use Mr. Peter. If the patient or family is female, you can use Mrs. Lucy as the title. So this is very mandatory and necessary to understand either you know your patient or not, because introduction will depend on this scenario, on this situation. Then you can make your introduction और ओपनिंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन. ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने एक एग्जांपल शो की है कि एक पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ था पेंडेक्टमी के लिए एंड इज़ बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम योर वार्ड टुडे. आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि डू यू नो दैट पेशेंट? ऑफ कोर्स 100% यू नो दिस पेशेंट. एक तो ये डायरेक्ट सिनेरियोज होते हैं कि पेशेंट इज़ बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम योर वार्ड. समटाइम क्या होता है कि जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे मेंशन किए होते हैं या कुछ फ्रेज ऐसी इंक्लूड की होती हैं, लाइक दिस इज़ अ फॉलो अप विजिट, ही और शी मीन्स पेशेंट केम बैक, और विजिटेड यू लास्ट वीक. ये सारी इन्फॉर्मेशन समटाइम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में मेंशन की होती है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ फॉलो अप विजिट, वट यू विल अंडरस्टैंड? यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस पेशेंट केम अगेन फॉर फॉलो अप. ये पहले भी मेरे पास आया था और अब भी दोबारा आया. अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके क्यू कार्ड पे मेंशन है आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में, तो आपका इंट्रोडक्शन नॉन पेशेंट के लिए होगा. देन यू कैन से नाइस टू सी यू अगेन, नाइस टू मीट यू अगेन. इस तरह की फ्रेज आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं. सो पे अटेंशन टू द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड द सेटिंग. फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में जो पेशेंट अभी डिस्चार्ज हो रहा है, सो हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद दिस पेशेंट? You can say like this: hello, good morning, Mr. Peter. My name is Alex John. I'm one of the registered nurses working in this department or in this ward. How you are feeling today? आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह से प्रिटेंड किया है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ, उसका नाम पीटर जॉन है. आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और आपने ये भी उससे पूछा कि आप आज कैसा फील कर रहे हैं. So if the case is known, your introduction will be different. If the case is unknown, definitely you will introduce yourself in a different way. Say if the patient is unknown, how you can introduce yourself.
So the sample of introduction phrases or introductory paragraph are like this. The first one says, "Hello, good morning. I am Alex John, a nurse on duty. Can I ask your name please?" सो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने उसको ग्रीट किया है, उसको टाइम विश किया है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है, अपना रोल बताया है, अपना नाम और रोल एक साथ बताया है, और फिर हमने उनसे पूछा है कि आपका नाम क्या है। द सेकेंड सैम्पल से, हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम एलेक्स जॉन, वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सेज वर्किंग एट दिस क्लिनिक. For the record purpose, could you tell me your full name please? Sample number 3. Hello, good morning. I am Alex John and I am your attending nurse today. Can you tell me your full name please? तो ये 3 सैम्पल हमने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो डिस्प्ले किए हैं वो ये बता रहे हैं कि जब आप पेशेंट को नहीं जानते या आपको उनका नाम नहीं पता तो आप इन फ्रेज़ को यूज़ करके या इस तरह के जो सैम्पल इंट्रोडक्शन है इनको यूज़ करके आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं और आप पेशेंट से नाम पूछ सकते हैं। बट आपको फ्लेक्सिबल होना है और आपने कोई सीखे सिखाए या रटे रटाए जुमले वहाँ पे नहीं बोलने। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे सैम्पल नंबर 3 यूज़ करना पड़े या फर्स्ट आपके जहन में आ रहा हो उस टाइम या सैम्पल नंबर 2 जहन में आ रहा हो। तो ये एक सिर्फ आपको एक हाउ नाउ दी है कि आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं डिफरेंटली। तो आपने सीख के जुमले नहीं जाने कि जी ये इसका रट्टा मार लूँ ये मेरे जहन में रहेगा, नहीं। आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फ्लेक्सिबल होना है और जो सिचुएशन या टास्क आपको दिया गया है उसके हिसाब से आपने अपना इंट्रोडक्शन वहीं पे आपने जो है ना वो बना लेना है। तो सबसे पहले आप टाइम वेस्ट करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, देन आपने नेम पूछना है पेशेंट का। सो बी प्रोफेशनल एंड एथिकली स्ट्रॉन्ग कि आपने डायरेक्ट नाम नहीं पूछना, पहले आपने ग्रीट करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है और फिर आपने पेशेंट से उसका नाम पूछना है। ऑलराइट जी, अब हम वो सैंपल देखते हैं जिसमें हम पेशेंट को पहले से जानते हैं, जिसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में इस तरह के फ्रेजेस अगर यूज़ किए हैं कि यू ऑलरेडी नो द पेशेंट, दिस इज़ सेकंड फॉलो अप, विजिटेड बैक, केम अगेन, फॉलो अप विज़िट। अगर इस तरह के फ्रेजेस यूज़ किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पेशेंट को पहले से जानते हैं या इन पेशेंट दिए गए जैसे हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल वार्ड है और पेशेंट डिस्चार्ज है, तो इट मीन कि आप पहले से पेशेंट को जानते हैं। तो इन सिचुएशन में हम पेशेंट का नाम लेके उनको किस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कुछ सैम्पल मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले किए हैं जिसमें फर्स्ट वन सेज, हेलो मिसेस लूसी, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ एलेक्स जॉन, आई एम अ नर्स ऑन ड्यूटी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? The second one says, hello, good morning, Mrs. Lucy. Do you remember me? I am Alex John, your attending nurse today. How are you feeling after surgery? Third one इस तरह का हो सकता है, hello, good morning. Nice to see you, Mrs. Lucy. My name is Alex John and I am one of the registered nurses working in this ward. तो आप तीनों में से कोई भी सैंपल इस तरह का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। पर्पस क्या है इसमें, जो मेन हमारा एम है या गोल है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम पेशेंट को पहले से जानते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने वही रखी हैं। हमने पेशेंट को ग्रीट किया है, टाइम विश किया है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है, अपना रोल बताया है, फिर पेशेंट को ये प्रिटेंड किया है या ये बताया है कि हम पहले से पेशेंट को जानते हैं, और आप इस तरह से कॉन्फिडेंटली उनका नाम लेके भी उनको ग्रीट कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम जब आपको इंटरलॉक्यूटर अपना नाम बताता है, आप एक पेपर पे नोट कर लें और पेशेंट को जब भी आपने कॉल करना है उस नाम से करना है। सो एज़ यू कैन सी कि इन तीनों सैम्पल्स में हमने स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया है, बट मेन थीम उसका जो हमारा जो मेन पर्पज़ है उसको हमने चेंज नहीं किया। हमने पेशेंट को ग्रीट किया है, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, अपना रोल बताया है, लेकिन जो सेंटेंस चूज़ किए हैं वो हमने डिफरेंट किए हैं। अगर आपने बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखना है तो आप फर्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं अपने आप को तो आप सेकंड या जो थर्ड सैम्पल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के सैम्पल्स आप को ये बताते हैं कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, और आपने, फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि आपने कॉपी कैट वाला काम नहीं करना, आपने फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबल होने से आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो डिफरेंट होगा। और जब आपका पेशेंट नाउन हो, जब केस नाउन हो, जब क्यू कार्ड में बताया गया हो कि पेशेंट नाउन है,
या आपको लग रहा हो कि पेशेंट नाउन है, सेटिंग इंडिकेट कर रही हैं, तो आपने कोई नाम बना लेना है। आप इंटरलॉक्टर के नाम से भी उसको बुला सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई भी नाम आता है मेल या फ़ीमेल के हिसाब से, अगर पेशेंट इंटरलॉक्टर मेल है तो कोई मेल का नाम बना लें, अगर फ़ीमेल है तो फ़ीमेल का नाम बना लें। सो इसमें मैंने आपको बताया है कि अगर नाउन है, पेशेंट का नाम पता है आपको पहले से, तो किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। ऑलराइट जी, अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सेटिंग भी बाज़ औक़ात इंसान को कंफ्यूज कर देती है कि क्या मैं पेशेंट को पहले से जानता हूँ या नहीं जानता। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो क्या किया जाए? तो उस सिचुएशन में आपने अपना इंट्रोडक्शन सेम रखना है और आपने पेशेंट को, आपने सिचुएशन इस तरह की बनानी है कि जिसमें पेशेंट को पता चले कि आप शायद जानते भी हैं और नहीं भी जानते, बस आपने उसका पेशेंट का नाम कंफर्म करना होता है। तो उसमें आप इस तरह का सैम्पल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ एलेक्स जॉन, आई एम अ नर्स ऑन ड्यूटी, जस्ट टू मेक श्योर दैट आवर रिकॉर्ड्स आर करेक्ट, कुड यू टेल मी योर फुल नेम, राइट। तो इसमें आपने क्या किया, आपने उसको ये नहीं बताया कि मुझे आपका नाम पता है या मुझे आपका नाम पता नहीं है। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है, अपना रोल बताया है और आपके पास पेशेंट का रिकॉर्ड है, आपने इस चीज़ को प्रिटेंड किया है। अब आप उससे उसका नाम कंफर्म कर रहे हैं। सो सम सिचुएशन में अगर पेशेंट का नाम नहीं पता तो भी आप ये वाला सैम्पल यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का इंट्रोडक्शन। और सम टाइम अगर आपको पेशेंट का नाम पता है तो भी आप ये वाला कर सकते। तो जस्ट मेक इट क्लियर कि जो पेशेंट का नाम है वो हमारे रिकॉर्ड के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें आप कंफ्यूज हों कि मैं पेशेंट को पहले से जानता हूँ या नहीं जानता, या जो पीछे जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं इंडिकेट कर रही कि आपके आपको पेशेंट का नाम पता है या पहले से आप जानते हैं या नहीं जानते, तो आप ये वाला जो सैंपल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं या इस तरह का सैंपल आप कोई भी बना सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जब भी OET की प्रिपरेशन कर रहे हों इन छोटी छोटी चीज़ों को जहन में रखें। दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसमें हमने सीखा है कि हम किस तरह से पेशेंट को डिफरेंट वेज़ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से उनका नाम बना सकते हैं। काइंडली हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो OET लेटर राइटिंग पे होगी और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ OET लेटर इंट्रोडक्शन। गॉड ब्लेस यू ऑल मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।